بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 39 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں کلندر ذات۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالیہ، مصنف امجد جاوید۔ یہ کتاب 1874 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 39 صفحہ نمبر 367 سے۔ سورج مغربی افق میں ڈوب چکا تھا جب جسپال اوگی میں کوٹھی کے سامنے پہنچا۔ اس نے دور ہی سے دیکھا، کوٹھی کے سامنے بہت سارے لوگ جمع تھے۔ یہ ایک طرح سے خطرناک معاملہ تھا، اگرچہ ان کا انداز استفہامیہ ہی لگتا تھا، مگر ان میں کوئی دشمن بھی ہو سکتا تھا۔ وہ محتاط ہو گیا۔ جیسے ہی ان کے پاس کار رکی تو وہ اتر آیا۔ لوگوں نے پھول کے ہار اس کے گلے میں ڈالی اور ایک طرف ڈھول بجنے لگا۔ ان میں وہی لوگ پیش تھے جو ایک بار اسے گھر آ کے ملے تھے۔ وہ کچھ دیر ان سے ملتا ملاتا رہا، پھر اندر کی جانب چل دیا۔ بنتا سنگھ نے گیٹ بند کر دیا۔ سامنے کلجیت کنور، ہرپریت اور انوجیت کھڑے تھے۔ ہرپریت اسے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سب سے گلے ملا، پھر ڈرائنگ روم میں اس نے وہی کہانی سنائی جو کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس میں سنا چکا تھا۔ تبھی انوجیت نے کہا، تم نے دیکھا؟ تمہاری واپسی پر اوگی پنڈ والوں میں اتنا جوش و خروش کیوں ہے؟ ہاں، یہ میں جاننا چاہوں گا، جسپال نے تجسس سے پوچھا۔ تم نے جو بلجیت سنگھ کے ساتھ کیا تھا، یہ ان کے اندر کی خواہش تھی۔ وہ دوبارہ لوٹ کر اوگی میں آ ہی نہیں سکا ہے، اب بھی تک دل ہی میں ہے، اپنے باپ کے پاس۔ ان کا تو جیسے یہاں سے صفایا ہی ہو گیا ہے، انوجیت نے بتایا۔ میں نے سنا تم پر پولیس نے بہت تشدد کیا ہے، جسپال نے آہستگی سے پوچھا، تو وہ کہکا لگا کر ہنستے ہوئے بولا، یار یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، تو بے فکر رہو۔ چل پتر، اب تو فریش ہو جا، میں اتنی دیر میں کھانا لگواتی ہوں، کلجیت کنور نے کہا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے ہرپریت کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا، وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے مبہم سا اشارہ کر کے اٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں بدلا، جبکہ اس کی اپنی دنیا بدل چکی تھی۔ ہر شے ویسی کی ویسی پڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہرپریت اندر داخل ہوئی۔ وہ اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں جوش و خروش ختم ہو کر رہ گیا ہو۔ وہ اس کے پاس گیا اور دونوں ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، پریتی، کیا ہوا تجھے؟ ایسا کیوں؟ اس نے پریشانی میں پوچھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر ایک دم سے اس کے سینے کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ پریتی، کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ، تم کیوں رو رہی ہو؟ پہلی بار مجھے خوف آیا ہے تیرے جانے کے بعد۔ میں تجھے کھونا نہیں چاہتی جسپال، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اوہ، میں سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اسے الگ کیا تو ہرپریت کا چہرہ ویسے ہی ستا ہوا تھا اور آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ اسے بھیگتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں جسپال، بہت کچھ بدل گیا ہے، کچھ بھی نہیں بدلا، اور اپنا یہ موڈ ٹھیک کرو، میں نے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ جسپال نے خوشگوار موڈ میں کہا تو وہ دھیرے سے غمزدہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اب تو تیرے ساتھ باتیں کرنی ہے یا پھر تیری ہی باتیں کرنی ہے؟ تیرے بنا اب کیا رہ گیا ہے؟ اس کے یوں کہنے پر جسپال نے ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، نہیں ہرپریت، میں تمہیں پہلے ہی جیسا دیکھنا چاہتا ہوں، زندگی سے بھرپور۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا اور آنسو پونچھتی ہوئی ادھر ادھر دیکھ کر بولی، تم جاؤ باتھ روم میں تمہارے لیے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ جسپال نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور باتھ روم کی طرف چل دیا۔ کھانے پر دیر تک باتیں چلتی رہیں۔ اس نے اپنے بارے میں کم اور وہاں کی صورتحال کے بارے میں زیادہ بات کی۔ بظاہر اوگی میں اب کوئی خطرہ نہیں تھا، بلجیت اور اس کا خاندان یہاں سے جا چکا تھا۔ انوجیت کو پھنسایا گیا تھا، لیکن دلبیر سنگھ نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ پولیس کے علاوہ جہاں جہاں بھی ضمانت دینے کی ضرورت پڑی، وہاں دلبیر سنگھ نے ہی ضمانت دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ سارے لوگ جو بلجیت سنگھ سے تنگ تھے، سب کے سب انوجیت کے حق میں تھے۔ مجموعی طور پر اوگی پنڈ کا ماحول بدل چکا تھا۔ انوجیت، جو بھی ہو جائے، میں نے رویندر سنگھ کے خاندان کو ختم کرنا ہے۔
दिलजीत के बारे में मालूम है कि वो अब कहाँ है? दिल्ली के किसी अस्पताल में है या? मैंने बात अधूरी छोड़ दी तो अनुजीत बोला, वो ना तो जिंदू में है और ना मुर्दों में। मेरे ख्याल में वो ज्यादा सदा भुगत रहा है, अपने बाप के पास दिल्ली में ही है। मुझे तो यही मालूम है, आगे रब जाने। चल ठीक है, मैं पता कर लूंगा, मैंने सोचते हुए लहजे में कहा। तो हरप्रीत ने जसपाल की तरफ बड़े गौर से देखा, जिसकी उसे समझ नहीं आ सकी। खाने के बाद जसपाल अपने कमरे में चला गया। उसके जहन में जमाल था, न जाने अब वो कहाँ होगा। रोही में जो एक साथ वक्त गुजारा था, उस बाइस जमाल की आदत सी हो गई थी। वो अकेला पड़ा आइंदा आने वाले दिनों के बारे में सोच रहा था कि क्या करना होगा। दिलजीत की हालत के बारे में जानकर ना तो उसे अफसोस हुआ था ना खुशी। शायद वो उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि हरप्रीत एक छोटी सी ट्रे में चाय का मग रखे आ गई। उसे खामोशी से बेड पर ट्रे रखी और उसके पास बैठ गई। वो चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, हरप्रीत, तुम्हें क्या हो गया है? कहाँ गए तुम्हारे वो दावे? एक गोली खाकर तुम इतना बदल गई हो कि अब मौत से भी डर लगने लगा है। ये सुनकर वो चंद लम्हे जसपाल की तरफ देखती रही, फिर बोली। उसके लहजे में अफसुर्दगी छलक रही थी। जसपाल, मैं अब भी वैसी की वैसी हूँ, लेकिन अफसोस में हूँ कि मुझे ये गोली इसलिए लगी कि मैं तेरे साथ थी। जिस मकसद के लिए मैं जिंदा हूँ, ये गोली इसलिए मुझे नहीं लगी। मैं अपने मकसद से हट गई थी। शायद रब को मेरा ये अमल पसंद नहीं आया। मैं औरत हूँ, मेरे भी जज्बात हैं। मैं चाहे जितनी भी सख्त हो जाऊं, फितरी तौर पर मोहब्बत तो मेरे अंदर है ना। तेरी जुदाई ने मुझ पर यह राज इंकशाफ किया कि तो मुझे लगा मैं नाकाम हो गई। प्रीति, मैं तेरी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन मुझे बता, इसमें मेरा क्या दोष है? और जहां तक तेरी नाकामी की बात है, तो तू ये जान ले, हमारा मकसद पूरा हो गया तो मैं तेरे मकसद के लिए लड़ूंगा। इसकी मुझे आगाही हो गई है। सच जसपाल, तू सिक्की के लिए लड़ेगा? उसने खुशगवार हैरत से कहा। हाँ प्रीति, मुझे लड़ना होगा, लेकिन इस तरह नहीं जैसे यहाँ के लोग जुर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं, बल्कि मैं समझता हूँ उन्हें जुर्म के रास्ते पर डाल दिया जाता है। कोई भी हुर्रियत पसंद तंजीम जब जुर्म के रास्ते पर डाल दी जाए तो न सिर्फ अपने मकसद खो बैठती है, बल्कि वो अपनी कौम का भी नुकसान करती है। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? हरप्रीत ने उसके चेहरे पर देखते हुए पूछा। देख, इस वक्त हथियारों की लड़ाई बहुत पीछे रह गई है। दुश्मन ने बड़े गहरे वार कर दिए हैं सिख कौम पर। शराब को उनकी रगों में कैसे डाल दिया है कि वो इसके बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। गानों के जरिए, फिल्मों के जरिए और न जाने किस किस तरह उनके अंदर जवां-मर्दी की अलामत शराब पीना बताया गया है, और सिख कौम शराब पी रही है। तुम्हें मालूम है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा शराब पंजाब में पी जाती है। खोखला करके रख दिया है सिख कौम को, बंदूक उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। सन्नत जर्नैल सिंह भंडारवाला का जो पैगाम है कि अब सिख नौजवान उससे दूर भागते हैं, तू खुद बता। साका 84 के नाम से किस कदर शर्मनाकी महसूस करते हैं। नाम नहीं लेते, सिर्फ तीसरी नस्ल के लोग हैं जो इंतकाम के चक्कर में हैं। फिर इसके बाद क्या है? कुछ भी नहीं। तुम्हारा मतलब है पहले सिख कौम की ज़हन साजी की जाए? हरप्रीत ने कहा। तो और क्या? सिख कौम की कुव्वत जिन नजरियात से थी वो खत्म हो रही है। अब देखो, साका 84 सिख कौम के खिलाफ हुआ और सिखों के रूहानी मरकज हरमंदिर साहब में हुआ। सिख कौम का कत्ले आम हुआ सिखों ही की इबादत गाह में, और अब सिख कौम अपनी ही इबादत गाह में इस सानहे की यादगार नस्ब करना चाहती है हरमंदिर साहब में, लेकिन नहीं कर पा रहे। अपनी ही इबादत गाह में अपनी यादगार नस्ब नहीं कर पा रहे। प्रीति, वो कौन सी कुव्वत है जो ऐसा नहीं करने दे रही? वो दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही हैं। हम में इत्तेहाद नहीं, इसलिए ही अपनी कुव्वत का अंदाजा लगा लो।
तू बड़ी मायूसी वाली बातें कर रहा है जसपाल, वो वाक्तन मायूसाना लहजे में बोली। जब तक बीमारी का इल्म न हो इलाज कैसे मुमकिन होगा? मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। आज अभी एक सिख 1.25 लाख हिंदुओं पर भारी हो सकता है, लेकिन इसके लिए बाबा जी महाराज के ख्यालात को अपनाना होगा। जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन ये जमीनें और जायदाद मेरे नाम हो जाए। मायूस नहीं होना, हम फ्रीडम फाइटर हैं और रहेंगे, लेकिन हमारा अपना अंदाज होगा। सिख तंजीमें जो करती हैं वो करती रहें, वो उनका काम है, हम अपना काम करते रहेंगे। जस्सी जी एक बात कहूं? वो बड़े प्यार से बोली। बोलो, उसने कहा। तेरे लहजे और बात करने में बड़ा एतमाद आ गया है। कहाँ रहा है तू इतने दिन? उसने पूछा। मैंने बड़ी अजियत में वक्त गुजारा है, किसी भी लम्हे जिंदगी खत्म हो सकती थी। ये वाह गुरु की मेहर है कि मैं अब तुम्हारे सामने जिंदा हूँ। मौत को अपनी निगाहों के सामने देखकर एतमाद आ ही जाता है, जसपाल ने कहा और चाय का मग उठाकर लंबा सिप लिया। हरप्रीत भी मग उठाकर चाय की चुस्की ली और चंद लम्हे सोचती रही, फिर बोली। एक वक्त के लिए तो ऐसा लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर नहीं। वाह गुरु हमसे कोई काम लेना चाहता है, वो सारे काम हो जाएंगे, पर तू वो पहले वाली हरप्रीत बन जा, शोहर चंचल। जसपाल ने कहा तो एकदम से हंस दी। वो उसकी तरफ देखता रह गया, फिर बोला। कल सुबह तैयार रहना, हमने जालिंधर जाना है, वहां के पुलिस चीफ से मुलाकात है। हो सकता है हमें दिल्ली भी जाना पड़े, अपने सिफारतखाने। तू जहां रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगी जसपाल। ये कहते हुए वो उसके बिल्कुल करीब हो गई। जसपाल ने भी उसे सहारा दे दिया। वो दोनों बेड के सहारे लगकर बैठ गए, फिर खामोशी से चाय पीते रहे। मग एक तरफ रखकर वो बोली। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम यूं बिछड़कर फिर एक साथ यूं बैठेंगे, हसरत ही हो गई थी। अब तो अपने जहन से सब कुछ निकाल दे, सारी मायूसी एक तरफ रख दे और सिर्फ ये सोच कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और उससे हमने नबर्द आजमा कैसे होना है। ये कहकर जसपाल ने उसे मजीद अपने करीब कर लिया। वो उसकी बाहों में यूं फैल गई जैसे बरसों से तरसी हुई हो। उसका बदन हौले हौले कांप रहा था, जिसे जसपाल उसको हौसला देने के अंदाज में थपकी देने लगा। नया पैराग्राफ। सुबह मेरी आंख खुली तो अभी अंधेरा था। मैं कुछ देर बेड पर किस्मसाता रहा, फिर उठकर बाथरूम में घुस गया। मैं फ्रेश होकर ये सोच ही रहा था कि किचन तक जाऊं और चाय बनाकर पीऊं। इतने में दिलजीत कुंवर अंदर आई। उसके हाथ में जूस का गिलास था, जबकि दूसरा वो खुद पी रही थी। उसने वो जूस का गिलास मेरी जानिब बढ़ा दिया तो मैंने पूछा, तुझे कैसे मालूम हुआ कि इस वक्त मुझे कुछ पीने की तलब हो रही थी? ये कहकर मैंने गिलास थाम लिया। सुबह उठने के बाद हर बंदे को भूख लगती है, ये फितरी सी बात है। अनार का जूस है, पी लो, उसने कहा और सोफे पर बैठ गई। इस वक्त भी वो इंतहाई मुख्तसर लिबास पहने हुए थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, और तुझे मालूम हो गया कि मैं उठ गया हूं। ये इमारत मेरे कंट्रोल में है, यहां जो होता है मुझे मालूम होता है। खैर, तुम ये जूस एंजॉय करके ड्राइंग रूम में आओ। ये कहकर वो उठ गई और मैं हल्के हल्के सिप लेता हुआ खिड़की में आन खड़ा हुआ। बाहर सुबह की सफेदी नमूदार हो रही थी। मैंने बड़े सुकून से जूस खत्म करके गिलास साइड टेबल पर रखा और ड्राइंग रूम की तरफ चल दिया। दिलजीत कुंवर घेरों रंग की शलवार कमीज में खड़ी थी, सर पर दुपट्टा था। वो मुझे इशारा करके सीढ़ियां बढ़ती चली गई। मैं उसके पीछे लपका। वो एक हालनुमा कमरे में दाखिल हुई। सामने एक सिख ज्ञानी बैठा हुआ था। उसके सामने चंद नौजवान लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे। लड़के एक तरफ जबकि लड़कियां दूसरी तरफ। मैं भी लड़कों वाली तरफ बैठ गया। वो तकरीर कर रहा। खामोश हो गया। मेरी जानब उसने गहरी निगाहों से देखा, फिर बोलता चला गया। बरे सगीर की तारीख क्या है? लेकिन जरा ठहरिए, क्या वाकई हम उसे तारीख कह सकते हैं, या फिर बरे सगीर के हुक्मरानों, सियासतदानों और सुरमाओं के मुंह पर पोती हुई कालक? किसी मजहब या मत की इसमें तहसीस नहीं। हर एक ने दूसरे की इबादतगाहों को गिराया, मस्मार किया,
मलिया मेट करके अपनी फतह का ऐलान किया। क्या साबित करने के लिए? क्या बरसगीर की मिट्टी ऐसी थी? दूसरे मजहब की इबादत गाहों को मस्मार करने का मौका नहीं मिला तो अपने ही मजहब के उन लोगों पर जो किसी न किसी हवाले से एक दूसरे के नजरिए से इख्तिलाफ रखते थे, महाज आराई का आगाज हो जाता है। गले काटे, लहू बहाया और जिंदा आग में जला दिया। इंसान जो इस धरती पर चलता है, इस धरती पर पैदा हुआ, क्या इस धरती की मिट्टी इस कदर जालिम और लहू की प्यासी है कि इसकी प्यास बुझती ही नहीं? महाभारत से लेकर अजीम हिजरत 1947 तक, फिर सानहा 1984 तक और फिर आज तक इस धरती ने कितना लहू पिया? सवाल ये है कि धरती प्यासी है और इस धरती पर पैदा होने वाले इंसान की सोच में लहू बहाने की प्यास है। 1947 में बरसगीर में लकीर खींच दी, बेहिसाब इंसानी खून बहा। इन दिनों बारिशें और सैलाब आने की वजह समझ में आई, बल्कि अब भी समझ में नहीं आती। वो धरती की माथी पर कालक को साफ करने के लिए था या लहू बहाने वाले जहनों से? लगता था कि शायद अब इस धरती के लोग संभल जाएंगे, इतना लहू, लेकिन नहीं, लहू फिर बहा, लकीर के उस पार भी और लकीर के इस पार भी, और अब तक बह रहा है। आसमान हैरान है, धरती परेशान है। ये सब मजहब के नाम पर हो रहा है। वो सारे मजहब जो अमन, आश्ती और भाईचारे के अलमबरदार हैं, क्या मजहबी विचार नहीं समझेंगे? या फिर हम उन अहलाकी ज़ाब्ता हयात को समझने में गलती कर रहे हैं? बहता हुआ लहू अब भी ये सवाल कर रहा है, ये धरती लहू की प्यासी है या इस धरती पर पैदा होने वाला इंसान? सवाल ये है कि इस सवाल का जवाब हम किससे लें, क्योंकि सभी अपने आप को हक पर समझते हैं। कोई भी खुद को नाहक नहीं समझता। सभी के पास दलाइल के अंबार हैं और अलमिया ये है कि सभी अपने अपने मजहब से दलाइल लेते हैं। जो कौम बहकती है वही लहू का हराज देती है। ये तारीख है। क्या हम सारे मिलकर ये नहीं समझ सकते कि ये लहू सिर्फ और सिर्फ मुनाफिकत से बहता है? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मुनाफिक है। चाणक्य का पैरोकार कौन है? कौन साजिश करने की तालीम देता है? कौन सा मजहब या मत मुनाफिकत की बाकायदा तरबियत देता है? जब ये पहचान लिया जाए तो लहू बहाने वाले की सोच भी वाज़िह हो जाएगी। मुनाफिक अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और। वो अपनों को भी नुकसान पहुंचाता है और दुश्मन को भी। यही शैतानियत है और हमें इसके खिलाफ ही लड़ना है। यहाँ मामला मजहब और मत का नहीं रह जाता, बल्कि इंसानियत का है। इंसान जो सच्चे रब की सुहनी तहलीक है। ज्ञानी कह चुका तो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया, फिर कुछ देर सिख मत के मुताबिक बात करके उठ गया। नाश्ते की मेज पर सभी थे, बिल्कुल खामोश, एक दूसरे से अजनबी। मैंने एक नजर सबको देखा। वो नौजवान लड़के लड़कियां थे जो कुछ देर पहले ज्ञानी की बात सुन रहे थे। नाश्ता खत्म करते ही दिलजीत कुंवर ने सबको मुखातब करते हुए कहा, आप सब लोग सहाफियों के रूम में शहर में फैल जाएंगे। पूरा इम्कान है कि शहर में जुलूस निकलेंगे, एहतजाज होंगे, मुमकिन है तोड़फोड़ भी हो। आपने करना यह है कि एहतजाजी जुलूस निकालने वाले जो चंद लोग होते हैं उनकी तस्वीर और वीडियो बनानी है। देखना यह है कि वो कौन लोग हैं जो अवाम को हरकत में लाए हैं। जाहिर है इनमें पुलिस के अलावा खुफिया के लोग भी होंगे, वो भी तो ट्रैप करने वाले चक्कर में होंगे। इनमें मौजूद एक लड़के ने कहा जो काफी सेहतमंद था, हो सकता है वो खुफिया वाले ही जुलूस निकलवाएं, यही तो देखना है। और मेरे ख्याल में हर सहाफी को चेक नहीं किया जाएगा कि वो आप लोगों को ट्रैप कर लें, क्योंकि आप लोगों का अभी तक कोई रिकॉर्ड कहीं पर नहीं है। ये कहकर उसने सबकी जानिब देखा और पूछा, कोई सवाल? दिल के पूछने पर किसी ने कोई बात नहीं की। उसने सबको जाने का इशारा किया। वो सब जा चुके तो वो मेरी तरफ देखकर बोली, आओ तुम्हें जालिंदर शहर की सैर करा लाऊं, चलो। मैंने कांधे उचकाते हुए कहा और उसके साथ उठ गया। हम पोर्च में आए तो एक सफेद रंग की कार वहां खड़ी थी। बिलाशुबा रात वाली कार कहीं ठिकाने लगा दी गई होगी।
हम इस कार में बैठे और चल दिए। ड्राइविंग दिलजीत ही कर रही थी। मेन सड़क पर आकर बोली, जमाल, रात से फकत पुलिस ही नहीं, खुफिया वाले पूरी शिद्दत से कातिल को तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कई जगहों पर छापा मारा है। इससे एक आइडिया हो गया है कि उनके दुश्मन कौन हो सकते हैं। रात भर से मदन लाल खुद सबकी कार्रवाई देख रहा है। उसके अपने बंदे भी फैल चुके हैं। तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, मैंने धीमे से लहजे में कहा। वो तो है, लेकिन इस हाई अलर्ट में हमने एक बंदा पार करना है जो इस वक्त पार्क में जॉगिंग कर रहा है। कौन है वो? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। मदन लाल का सियासी हरीफ सरदार निहाल सिंह। अब ये मत कहना कि वो बेचारा क्यों मारा जाएगा। वो बेचारा नहीं, ये सिख कौम का वो नासूर है जिसने सिखों की जवान नस्ल को मरवाया। आखिरी लफ्ज कहते हुए उसके लहजे में नफरत दर आई। मैं खामोश रहा। इस वक्त मुझे अजीब सा महसूस हुआ कि मैं ऐसे बंदों को क्यों मार दूं जिसका मुझसे बराह रास्त कोई लेना देना नहीं है। मैं यही सोच रहा था कि वो बोली, और पता है, ये वो बंदा है जो पाकिस्तानी पंजाब में राह की दहशतगर्द कार्रवाइयों में सलाहकार है। जो लोग प्लानिंग करते हैं ये इनमें से एक है। फिर तो इसे अगवा करके, मैंने कहना चाहा तो वो बोली, ऐसा भी होगा। आग लग जाए तो जंगल के बंदर अपने ठिकाने छोड़ देते हैं। इनमें तरह तरह के जानवर होते हैं। मैं बताऊंगी कि वो कौन है जिसे अगवा करके तुम अपने मकसद हासिल कर सकते हो, लेकिन अभी वो छुपा हुआ है। मैं बाद में बताती हूँ तफसील से। ओके, मैंने कहा और इर्द गिर्द देखने लगा। इस वक्त गाड़ी शहर के तवील पुल से गुजर रही थी। काफी जदीद रूप ले लिया था जालंधर शहर ने। मैंने अपना पिस्टल देखा, मैगजीन निकालकर फिर लगाया और सामने देखने लगा। कुछ देर के बाद वो लड़कियों के कॉलेज के सामने से गुजर रही थी और फिर आगे एक पार्क आ गया। वो देखो, सामने सफेद रंग की मारुति, वो छोटी गाड़ी जिसके साथ स्याह गाड़ी खड़ी है। हाँ, इसमें से एक गार्ड भी बैठा हुआ है। मैंने गौर से देखते हुए कहा, एक गार्ड उसके साथ भी है। जैसे ही पार्क के गेट से बाहर निकलने वाला होगा, उसे शूट कर देना। हम यहाँ बाहर हैं, इस तरह हमें यहाँ से निकलने में आसानी होगी, उसने प्लान बताया। मैं गेट की तरफ देखने लगा। दिलजीत ने अपनी रस्ट वॉच देखी और कदरे बेचैन होगी। फिर अचानक बोली, वो देखो, सब्ज और नीले रंग के ट्रैक सूट में, जिसने स्याह पगड़ी पहनी हुई है, वो तेजी से आ रहा था। मैंने इसका निशाना लिया और फायर कर दिया। गोली उसके सीने पर लगी थी और वो वहीं सीना पकड़कर बैठ गया। तब तक दिलजीत कार को गियर लगा चुकी थी। फिर वो इंतहाई तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करती हुई लम्हा बलम्हा दूर होती चली गई। कुछ फासला तय करने के बाद उसने कार एक शॉपिंग सेंटर के सामने रोकी और मुझे उतरने का कहकर एक दूसरी गाड़ी की जानिब बढ़ी, जिसमें पहले ही 2 लड़कियां बैठी हुई थीं। ये वही थी जिन्हें मैंने नाश्ते की मेज पर देखा था। वापसी पर बंगला और था, या दिलजीत ही किसी लंबे रास्ते से लेकर आई थी। वापस आते हुए काफी वक्त लग गया था। इस वक्त मैं और दिलजीत एक छोटे से कमरे में थे। उसके सामने एक लैपटॉप था। दिलजीत तस्वीरें निकाल कर देखती रही, फिर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर की तरफ इशारा करके बोली, पहचानो, इनमें से वो बंदा कौन है जिसे अभी शूट किया है। मैं गौर से देखता रहा, फिर एक बंदे पर उंगली रखते हुए कहा, मुझे तो ये लगता है बिल्कुल यही है। और ये 6 बंदे बैठे हुए हैं, इनमें से 3 खत्म हो गए और चौथा आज खत्म हो गया है। बाकी 2 रह गए हैं जो यहां नहीं रहते। इनमें से एक ये वाला रविंदर सिंह है, तुम्हारे दोस्त जसपाल का दुश्मन। इन दोनों की ताजा तस्वीरें भी दिखाती हूँ। ये कहकर उसने यके बाद दीगरे 2 तस्वीरें दिखाई। उनमें वो बूढ़े थे। ये हैं वो दोनों। इन सब का आपस में क्या ताल्लुक है, मैंने पूछा। ये सारे राह के लिए काम करते हैं और ये मगरबी पंजाब में कार्रवाइयां करवाने में माहिर समझे जाते हैं। इनकी जगह अब मदन लाल ग्रुप ले रहा है। अब इन दोनों ग्रुप्स की आपस में लग गई है और ये रविंदर सिंह के लिए एक इशारा है कि जसपाल ने जो कुछ भी किया वो जसपाल का काम नहीं, इन्हीं का काम है।
तुम जसपाल के बारे में जानती हो? मैंने तशवीश से पूछा। सब कुछ। वो जब भारत आया है तब से उस पर निगाह है। अब उससे बहुत सारा काम लेना है। कैसा काम? मैंने तेजी से पूछा। ये तो ऊपर वाले ही जाने, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तहम्मुल से बोली, अभी सिर्फ इसको बचाना है, बाद की प्लानिंग क्या है वो भी तय नहीं। उसका लहजा आम सा था, मगर मैं सोच में पड़ गया कि ये कौन लोग हैं और जसपाल के बारे में इतनी गहराई से जानने वाले ये किस कदर अहमियत रखती है। ये लोग तो जसपाल को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। ये कहीं आसमान से गिरा और खजूर में अटकने वाली बात तो नहीं होगी। ताहम अगले ही लम्हे मेरी निगाहों में मेहर खुदा बश का चेहरा घूम गया। वो जो वसवसा मेरे दिमाग में आया था एकदम से खत्म होकर रह गया। दिलजीत, मैं नहीं जानता तुम इस ग्रोह में क्या अहमियत रखती हो और किन लोगों से तुम्हारा ताल्लुक है, लेकिन मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काट कर बोली, गलत मत सोचो, मैं कुछ भी हैसियत नहीं रखती, एक मामूली सी कारकुन हूँ। मुझे ये सारी मालूमात दी गई हैं और वो भी फकत जालंधर की हद तक। यहाँ काम मुकम्मल होते ही मुमकिन है हम दोबारा न मिल पाएं, इसलिए जो भी टास्क दिया जाता है उसे मुकम्मल करना है। बाकी फकत 4 दिन रहते हैं और उनमें क्या करना है? मैंने पूछा। ये आज शाम पता चलेगा। उस वक्त के लिए तुम आराम कर सकते हो या फिर चाहो तो मेरे साथ वक्त गुजार सकते हो कि तुम मुझे जीत चुके हो। ये कहकर उसने कहका लगा दिया। मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी और उसके पास से उठने लगा तो वो बोली, अभी कुछ देर बैठो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ, लेकिन चलो पहले कुछ खा पी ले। ये कहते हुए उसने दीवार के साथ लगा बटन दबाया, फिर लैपटॉप पर देखते हुए बोली, क्या लोगे? जो भी, मैंने उकताए हुए अंदाज में कहा। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा दी और बोली, काश मैं तेरे साथ बहुत सारा वक्त गुजार सकती। उसके यूं कहने पर मैं मुस्कुरा दिया। नया पैराग्राफ। पुलिस चीफ के कमरे में काफी सारे लोग मौजूद थे। जसपाल सिंह का खून उस वक्त खोल रहा था जब उसने अपने से कुछ फासले पर रविंदर सिंह को देखा। चेहरे से इंतहाई मतीन और संजीदा दिखाई देने वाला, अपने बातन में कैसी खबासत रखता है ये वही जानता था। उसके साथ केशव मेहरा, दिलबीर सिंह और हरप्रीत थे। एक बंदा जो अताशी था वो सिफारत खाने की तरफ से वहां मौजूद था। इसके अलावा वहां चंद और लोग भी थे, उनके बारे में वो ये नहीं जानता था। काफी देर से बहस और तमहीस जारी थी। दोनों तरफ का मौकफ सुन लिया गया। तभी चंद लम्हे की खामोशी के बाद चीफ ने जसपाल को मुखातब करते हुए कहा, जसपाल सिंह जी, आपने कहा कि आपको अगवा कर लिया गया, लेकिन अब तक आपने ये नहीं बताया कि आपको कहां से अगवा किया गया, जबकि आपके शवाहिद चंडीगढ़ में पाए गए हैं, जहां जसबीर सिंह के शॉपिंग मॉल के सीसी कैमरे की वीडियो है आपकी। क्या आप इसकी वजाहत करेंगे? मुझे ओगी और जलंधर के दरमियान अगवा किया गया। ये इसी दिन का वाकया है जिस दिन बलजीत सिंह ने हवेली जलाई थी और मेरा उससे आमना सामना हो गया, और इतने दिन तक मैं अगवाकारों के कब्जे में रहा। जसपाल सिंह ने इंतहाई मतानत से जवाब दिया। और सीसी कैमरे में आपके शवाहिद? चीफ ने पूछा। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, जसपाल ने वाज़ेह अंदाज में कहा। आपको ये यकीन क्यों है कि अगवाकार रविंदर सिंह जी के लोग थे? उसने पूछा। वो अपने तौर पर न जाने कौन कौन सी बातें उगलवाना चाहते थे, जो सारी की सारी रविंदर सिंह और रणवीर सिंह इंस्पेक्टर से मुताल्लिक थी। उसने पुरसुकून अंदाज में कहा। तो आप चंडीगढ़ नहीं गए? उसने फिर पूछा। मैं तो नहीं गया, अगवाकार मुझे मुख्तलिफ जगहों पर लिए फिरते रहे हैं। मैं तो भारत के बारे में इतना नहीं जानता, बाकी रब जाने। उसने कांधे उचकाते हुए कहा। तो केशव मायरा ने तहम्मुल से मतला किया। देखे जी, उस दोपहर जब मुझे भी मालूम हुआ कि ओगी पिंड में लड़ाई हो गई है, मैं जालंधर से ओगी गया। रास्ते में हमें जसपाल की गाड़ी मिली। मैंने उस दिन ओगी चौकी थाने में रिपोर्ट कर दी। ये दिलबीर सिंह जी और गांव के चंद दूसरे अफराद भी थे। ये रिपोर्ट आपके सामने फाइल में पड़ी है। मुमकिन है प्लान के मुताबिक ये जसपाल सिंह छुप गया हो और चंडीगढ़ में जसबीर सिंह को कत्ल करने के बाद अब तक छुपा रहा हो। ये प्लान भी हो सकता है।
ایک وکیل نے دلیل دیتے ہوئے کہا تو کیشو مہرا نے دلیل دی، یہ تو پولیس اور خفیہ اداروں کی ناکامی ہوئی نا کہ اتنا عرصہ جسپال سنگھ کو تلاش نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔